Hello friends, we will be solving the MCQ paper of CA Intermediate Taxation January 2026 examination. So income tax mein there are these two case studies. Case scenario 1 consisting of 3 questions, 2 marks each. उसके बाद में standalone question है, question number 1 and 2, 4 and 5 नंबर का क्वेश्चन एंड केस सिनेरियो 2 कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. ऐसे करके 15 मार्क्स का इनकम टैक्स का एमसीक्यू है एंड 15 मार्क्स का जीएसटी का एमसीक्यू है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. अब एमसीक्यू का पूरा केस स्टडी पढ़ने के पहले मैं ये प्रीफर करता हूं कि मैं उसके क्वेश्चंस पढ़ लूं क्या पूछा है. सो पहला पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर प्रकाश अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो दिस प्लीज नोट दिस पेपर इज रिलेटेड टू द असेसमेंट ईयर 25-26. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी पूछा है एंड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड्स कैपिटल गेन पूछा है. तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर 3 का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट का आंसर निकालेंगे. सो डेटा हमको दिया है सिर्फ ये एक पेज पे केस सिनेरियो 1 का. मिस्टर प्रकाश रेसिडेंट इंडियन एजेड 61 ईयर्स, तो इज अ सीनियर सिटीजन. लेट मी ऑल्सो सी वेदर रेजिम के बारे में लिखा है ऑप्टेड टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब कि ओल्ड रेजिम में है. परचेस्ड अ शॉप फॉर ₹15 lakh in November 2004. Registration and other expenses were 12% of the cost. So total cost of the shop becomes 15 lakh plus 12% was 16,80,000. He entered into an agreement for the sale of shop to Mrs. Money in January 2014. The sale consideration was fixed at 20 lakhs. Mr. Prakash received 5 lakh as advance on that date by executing an agreement. However, in February 14, due to failure on the part of Mrs. Money, the said negotiation could not materialize, hence the amount of advance was forfeited. So this is advance forfeited before 1st April 2014. So it should be reduced from the cost of acquisition. इसको cost of acquisition से कम करना चाहिए. तो cost of acquisition जो कि 16,80,000 रुपए आ रही है, उसमें से ये 5 लाख रुपए हमने कम करना चाहिए to calculate the cost of acquisition for the purpose of calculating capital gains. Mr. Prakash entered into another agreement in January 2024 for the sale of this shop to Mr. Madan at 25 lakhs, received an advance of 8 lakhs on 15th April 24. हमारा previous year 24-25 रहेगा, तो 15th April 24 को एडवांस मिला है 8 लाख का. This advance will be taxable as income from other sources because it is forfeited. So Mr. Madan denied to complete the agreement due to non-availability of funds, and Mr. Prakash forfeited and retained the advance as per the agreement on that date. Finally, Mr. Prakash sold this shop to Mr. Mohan on 23rd June 2024 for 45 lakhs. Now please note this date is before 23rd July 2024. इसका मतलब कि यहां पर इंडेक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा इफ इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि ये है. सो कैपिटल गेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके आगे तो डिपॉजिट वगैरह है. डिपॉजिटेड 5 लाख इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट and earned interest of 26,700 gross on such fixed deposit receipts during the previous year 24-25. All right, so information is sufficiently available. We can do the calculations. तो देखिए यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स. हाउ? कैपिटल गेन्स के लिए हमारे पास में अवेलेबल है कंसीडरेशन which is rupees 45 lakhs for the property sold minus indexed cost of acquisition. Indexation would be applicable, not an option. Now indexation will be applicable on the cost of 11,80,000. 8 लाख रुपीस कॉस्ट में से एडजस्ट नहीं होगा, जो बाद का एडवांस है 1/4/2014 के बाद का एडवांस एडजस्ट नहीं होगा. सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कैलकुलेटेड considering 11,80,000 as the cost, 15 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस 12% मतलब 16,80,000 माइनस 5 लाख 11,80,000 इंटू 363 जो कि 2024-25 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय 113 जो कि ईयर इन विच द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट हेल्ड. तो 2004-5 का या आपको 4-5 का
इंडेक्स दिख रहा है. सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 lakhs into 363 divide by 113. So this would amount to, sorry, 45 lakh नहीं, 11,80,000 into 363 divided by 113. So 37,90,619. This will be the indexed cost of acquisition and this will give us the long term capital gain. 45 lakh में से ये अगर माइनस कर देंगे तो 7,09,381 rupees. This will be the long term capital gain. तो हम देख सकते हैं यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए. दिस विल बी द आंसर. देन ऑल्सो पूछा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना रहेगा. सो द आंसर विल बी 8 लाख द अमाउंट फॉरफिटेड प्लस 26,700 जो कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स. पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रहता था तो उसमें 3500 रुपए का एग्जाम्पशन होता था, बट ये पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है. सो द आंसर हियर मार्क्ड बाय द स्टूडेंट इज करेक्ट. ये स्टूडेंट की मार्किंग्स है, इस पे विश्वास नहीं करेंगे. जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. इट इज 8,26,700. नाउ टैक्स लाइबिलिटी. फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी देखिए ये पर्सन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 8,26,700. We have to do this calculation under the old regime. तो ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस मिल जाएंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB. 80C में पोस्ट ऑफिस 5 ईयर डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 1.5 lakhs एंड 80 TTB में 26,700 बिकॉज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी कवर्ड रहता है अप टू 50,000. तो ये इतना डिडक्शन मिल जाएगा. इससे हमको मिलेगा टोटल इनकम, इससे हमको मिलेगा टोटल इनकम ऑफ दिस पर्सन 7,09,381 प्लस 826,700. दिस वॉज GTI 15,36,081 माइनस 1,76,700. टोटल इनकम आ गया 13,59,380 ऐसा बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके. इसमें से दिस कंप्राइजेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 7,09,381, इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, एंड अदर जनरल इनकम. सो इसमें से 7,09,381 माइनस कर देंगे तो 6,50,000 दिस इज द अदर इनकम. नाउ ये इनकम पे टैक्स निकालना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स ऑन अदर इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 6,50,000 पे. अब ध्यान दीजिए ये पर्सन की एज 61 ईयर्स है, तो वी विल डू द कैलकुलेशन. फॉर फर्स्ट 3 lakhs nil, 3 lakh to 5 lakh it will be 10,000 एंड देन 5 lakh के ऊपर 1.5 lakh पे 20%. So this will be 40,000. So 10,000 plus 30%. Sorry, 10,000 plus 30,000 will be 40,000. And we will add to that tax on LTCG. ये जो LTCG है इसको 381 या 380 ले सकते हैं. इस पे 20% टैक्स लगेगा बिकॉज ये 23 जुलाई के पहले वाला है, 23 जुलाई 2024 के पहले वाला है. इंटू 20% होता है 1,41,876. तो 1 रुपए का राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है प्लस 40,000. सो टोटल टैक्स बिफोर सेस हो गया 1,81,876 प्लस 4% सेस. सेस अगर ऐड कर देंगे तो हमको एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाएगा. तो 1,89,151 आ रहा है विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 150. 1,89,150 दिस शुड बी देयर इन द ऑप्शन. सो MCQs नंबर 1 and 1 2 3. So this should be there in the option 1,89,150. You can see yes it is there, option number D. तो ये 3 आंसर्स हो गए हमारे. फिर ये 2 स्टैंड अलोन क्वेश्चन है. एन अमाउंट ऑफ ₹50 lakh इज गिवन बाय मिसेस थापर. आपको पूछा क्या है, while computing the business income of Mrs. Thapar Limited, the treatment of this expenditure should be.
सो आपको पहला लिखा है 50 lakhs का अमाउंट गिवन टू अ ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्टल अंडर कॉर्पोरेट सोशल, वी विल कंसिडर दिस वर्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिसप्रिंट मान सकते हैं, रीजनेबिलिटी लिखा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैंडेटरी स्पेंडिंग अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट. नाउ हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने स्पेंड किया. द अमाउंट वॉज सब्सिक्वेंटली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25. तो हमने किसी को डोनेशन दिया एक ट्रस्ट को हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए. तो बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त हमको इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, जबकि पीएनएल में चार्ज है. सो बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त क्या करना चाहिए? सो द आंसर शुड बी ऑप्शन ए कहता है कि नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. disallowed such amount while computing business income, this is correct. And capitalized in the books of account, no, because we have donated it to a trust, हमारे books में capitalize नहीं होगा. Disallowed such amount while computing the business income and claim deduction under 80G. Deduction under 80G, पहली बात तो business income compute करते वक्त नहीं होता है, आपको business income compute करते वक्त क्या करना है बोला है. और दूसरी बात तो वो ट्रस्ट अप्रूव्ड है कि नहीं 80G के लिए, वो भी नहीं लिखा है. So we will go with option B, disallowed such amount while computing the business income. हाँ, यदि वो ट्रस्ट अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 80G तो वो GTI के बाद में टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम जरूर डिडक्शन ले सकते हैं 80G में, लेकिन अभी वो नहीं रहेगा. वी विल गो विथ ऑप्शन B, disallowed while computing the business income. Next, this question is about the tax to be collected at source by Pier Parking Plaza Limited. Tax collection कितना करना है? It seems to be a case of leasing out of parking space. Leased out a parking space to Messrs. Greater Park and Company, a partnership firm, for 50,000 per month on 1st May and received 6-month lease rent in advance. On the same date, rest on monthly basis from November to March. इसका मतलब total months for which it has been leased to Greater Park and Company is 6 month plus 5 months. Basically May to March. तो हम कह सकते हैं कि 11 मंथ्स के लिए लीज आउट किया था इनको, और फिर पूरा पेमेंट इसी साल में मिल चुका है. इट हैज ऑल्सो गिवन अनदर लार्जर पार्किंग स्पेस टू डीपी पार्क लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. पब्लिक सेक्टर कंपनी को अगर लीज आउट करते हैं तो उसमें टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल. टीसीएस अंडर सेक्शन 206C 1C इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये जो पार्किंग प्लाजा वाला है ये टीसीएस यहां अप्लाई नहीं होता है. आप देख सकते हैं हमारा जो टीसीएस वाला जो पार्ट है, अब ये तो अमेंडेड रेट्स हैं बट द रेट एप्लीकेबल फॉर पार्किंग प्लाजा इज सेम. तो यू कैन सी राइट और इंटरेस्ट इन पार्किंग प्लाजा इज कवर्ड अंडर सेक्शन 206C 1C. 2% का टीसीएस एप्लीकेबल रहता है, बट 206C 1C में लिखा है इफ द licensee can be any person other than a public sector company. तो जो बायर होता है जिसका आप टैक्स कलेक्ट करते हो, so therefore इनका टैक्स कलेक्ट नहीं करना है. So 1 lakh per month from 1st June which debits lease rent in its account at the end of each month. तो ये सब कोई काम का नहीं है because this is not about TDS, this is about TCS. तो TCS will be applicable only on 50,000 into 11 months into 2%, जो कि ग्रेटर पार्क वाली कंपनी से लेंगे. तो 5,50,000 इंटू 2% इज ₹11,000. इतना टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा. और फिर नील फ्रॉम डीपी पार्क लिमिटेड. सो ऑप्शन सी के साथ में हम लोग जाएंगे. नो टीसीएस टू बी कलेक्टेड इफ द लाइसेंसी और द लेसी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. देन केस सिनेरियो नंबर 2, इसमें आपको क्या क्या पूछा है देख लेते हैं. आपको पूछा है टोटल इनकम अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम ऑफ मिसेस अनीशा. हेड वाइज इनकम पूछ लिया. हाउ मच टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन पेमेंट ऑफ पार्किंग चार्जेस बाय मिस्टर नागेश, एंड व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस अनीशा. ओके, तो 3 अलग अलग चीजें. तो पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस ही निकालना चाहिए, फिर हम लोग टोटल इनकम निकाल पाएंगे. सो लेट अस सी. मिसेस अनीशा एन इंडियन सिटीजन एजेड अबाउट 50 ईयर्स, लेफ्ट इंडिया. मैं रेजिम भी देख लूं. बोथ मिसेस अनीशा एंड मिस्टर नागेश ऑप्टेड फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. तो रेजिम पे भी ध्यान जाएगा हमारा. ओके. Left India on 29th of September 2024 for permanent settlement in the USA. Prior to this, she had never traveled outside India. She owns a self-occupied residential house property in New York, USA.
So she has left India for the first time right now on 29 September. Now, even though she is an Indian citizen, but it's not given that she is going out of India for the purpose of employment, or she is going out of India as a crew member of an Indian ship, or she is a person staying outside and coming on a visit to India. तो इसका मतलब सेकेंड बेसिक कंडीशन जो है 60 डेज वाली, वो मिसेज अनीशा के केस में एप्लीकेबल होगी. ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेबल नहीं होगी. सो फर्स्ट कंडीशन 182 डेज वाली तो शायद फुलफिल नहीं हो रही है, बिकॉज यदि आप कैलकुलेट करोगे, सो अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, प्लस सितंबर 29 डेज. तो इनफैक्ट 182 डेज की कंडीशन वैसे भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि जिस दिन जाती है उस दिन का भी टाइम नहीं लिखा है, तो हमको वो पूरा दिन कंसीडर करना होता है. और वो नहीं भी अगर होती है तो अभी 60 डेज ऑफ दिस ईयर प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, तो भी वो रेसिडेंट मानी जाएगी. सो मैं फिर से एक बार चेक करूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी भी 182 डेज की कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो yes, she is a resident and ordinarily resident because she had never traveled outside India apart from this. तो she is resident and ordinarily resident. Option C is correct. जो स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में मार्किंग लगाया था वो ठीक है. अब the expected, she owns a self-occupied residential house property in New York, USA. Self-occupied property in New York, USA. तो अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है तो इस प्रॉपर्टी का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं, उसका इनकम नील हो जाएगा, ना कोई इसमें से इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द हाउस विल नॉट बी कंसीडर्ड. शी हैज अर्न इंटरेस्ट इनकम ऑफ 11,50,000 विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इवन दो इट इज रिसीव्ड इन यूएसए बिकॉज शी इज ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. In India, she owns 2 residential properties, House X and House Y. House X was self-occupied by her during the stay in India, and the annual value of a similar property in the vicinity is rupees 8 lakh. House Y was let out for generating regular rental income. तो House X जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 प्रॉपर्टीज तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रह सकती है असीसी की. सो देयरफॉर इट विल बी अगेन उसका भी वैल्यू नील लेंगे, उस पर कोई इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. हाउस वाई की इनकम अब लेंगे. House Y is situated near a famous temple and was rented out to Mr. Amit for the entire financial year 24-25 at a monthly rent of 60,000 rupees. So 60,000 into 12 इसका रेंट बनता है, मतलब rupees 7,20,000. However, due to the upcoming annual temple festival attracting millions of devotees, the tenant found it difficult to reside in this area and wanted to shift to any other place. He refused to pay the rent for 2 months, though the tenancy remained bona fide. Means it is a case of unrealized rent. But ये 2 महीने का रेंट हम लोग कम करेंगे या नहीं करेंगे? It depends on what? It depends on fulfillment of 4 conditions. 1, the tenancy should be bona fide. 2, the tenant should have vacated the property. 3, the legal action should have been taken against the tenant. Steps should have been compelled to vacate. Okay. The tenant should not be in occupation with any other property, occupation of any other property. However, लिखा है to maintain goodwill, Mrs. Anisha offered him another semi-constructed residential property, which Mr. Amit accepted and shifted to that house. तो इसका मतलब कि ये unrealized rent का डिडक्शन नहीं मिलेगा. भले ही 2 महीने का रेंट आपको मिला नहीं होगा, बट वो माइनस नहीं कर सकते as the conditions of rule number 4 are not being satisfied. So this will be considered as the gross annual value. There is nothing given about the reasonable expected rent here, so we will assume that this is the gross annual value. Mrs. Anisha और ये जो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अवेलेबल करवाया है वो सेमी कंस्ट्रक्टेड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसका कुछ रेंट मिला भी नहीं है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं. Also entered into an agreement with Mr. Nagesh, a renowned parking contractor, to lease out her garage for parking space at ground floor of House Y. ये House Y का ही चल रहा है. तो House Y का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको पार्किंग स्पेस के लिए मिस्टर नागेश को रेंट आउट किया है फॉर 4 months एट अ रेंट ऑफ 55,000 पर मंथ. तो 55,000 इंटू 4, इसका मतलब 2,20,000 और रेंट मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस. आगे लिखा है बिजनेस टर्नओवर ऑफ मिस्टर नागेश
during the financial year 24-25 was 95 lakhs and for financial year 23-24 was 1.1 crores. तो मिस्टर नागेश टीडीएस के लिए लायबल रह सकता है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194I रेंट वाले के लिए, बट उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट लास्ट ईयर 2.4 lakhs था. Only if total rent exceeds rupees 2.4 lakh per annum. So therefore not applicable, because यहाँ पर सिर्फ 4 महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई है, 55,000 into 4, 2,20,000, तो TDS not applicable. And TDS अंडर सेक्शन 194IB जो है वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मिस्टर नागेश इज नॉट अ पर्सन जिसका बिजनेस में लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से कम था. अदरवाइज 50,000 पर मंथ से ज्यादा करंट है तो IB लग जाता है, तो 194IB भी एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर वाज मोर देन ₹1 करोड़. देयरफॉर 194IB भी नहीं लगेगा. सो सेक्शन 194IB नहीं लगेगा, 194IB भी नहीं लगेगा. सो TDS डिडक्टिबल मेरे ख्याल से नील होना चाहिए. देयर शुड बी नो TDS डिडक्टिबल ऑन पेमेंट ऑफ पार्किंग चार्जेस. सो बेसिकली ये पार्किंग चार्जेस नहीं है, लीजिंग चार्जेस है, लीज पे दिया पार्किंग स्पेस, तो नो TDS विल बी डिडक्टेड हियर बाय मिस्टर नागेश ऑन रेंट. अब इस साल से फाइनेंशियल 25-26 से तो ये रेंट का थ्रेशोल्ड 6 लाख रुपीस हो चुका है पर एनम. अब दूसरी बात, ये जो 2,20,000 है ये इनके GAV में जरूर ऐड हो जाएगा, तो टोटल ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 7,20,000 प्लस 2,20,000, मतलब कि 9,40,000. इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%. 9,40,000 का 30% होता है 2,82,000, ये माइनस हो जाएगा. और आपको अगले पेज पे बैंक लोन के बारे में भी लिखा है. हाउस एक्स एंड वाई वर एक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विद अ बैंक लोन ऑफ 25 lakhs and 30 lakh रिस्पेक्टिवली. मिसेस अनिशा पेड इंटरेस्ट ऑफ 2.5 lakh फॉर हाउस एक्स. अब हाउस एक्स तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये वाले इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज वी आर अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. बट इंटरेस्ट ऑफ 3 lakh accrued in house loan could not be actually paid for house Y. So हाउस Y के लिए जो 30 lakhs का लोन लिया है उसमें 3 lakh का इंटरेस्ट है. ओके, एक बार किसी को बुला लो, वो स्क्रीन ऑन कर देंगे. एक बार नीचे से किसी को बुला लो ना स्टाफ को. सो हाउस Y का जो इंटरेस्ट है दैट विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन. तो ये जो 9,40,000 आ रहा है उसमें 2,82,000 माइनस हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा, भले ही वो पे नहीं कर पाए, बिकॉज इंटरेस्ट के डिडक्शन में पेमेंट इज नॉट अ कंडीशन. इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो मिल जाता है इवन इफ इट इज जस्ट अक्रूड, इवन दो इट कुड नॉट बी एक्चुअली पेड. एक्चुअली पेड की कंडीशन म्यूनिसिपल टैक्स ले रहता है और वो इस क्वेश्चन में है नहीं. सो नेट नेट देखेंगे तो 9,40,000 माइनस 2,82,000 माइनस 3 lakh, सो 3,58,000 मेरे कैलकुलेशन से आ रहा है मिस अनिशा का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,58,000. एंड हमने कैलकुलेट किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 11,50,000. तो वी विल गो विथ ऑप्शन डी. टोटल इनकम विल बी 3,58,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड 11,50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी एंड 8 भी हो गया. सो वी आर डन विद द MCQ पार्ट. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द GST की. इसी के आगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे और फिर वी विल कंटिन्यू विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ. सो आप लोगों के दोस्तों का पेपर हो गया जैन 2026. अब अगला पेपर, दोस्त कोई नहीं था वो बैच में? अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है बन जाए आगे. सो जैन 2026 का एग्जाम हो चुका है, अगला एग्जाम मई 26 का है, फिर आप लोगों का एग्जाम है, राइट? ज़्यादा दिन नहीं बचे. तो हम लोग अभी GST का जो पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड जो पेपर है वो सॉल्व कर लेंगे और आई होप आपको उससे कुछ कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, सो पहले MCQ कर लेते हैं. 15 मार्क्स का MCQ है और फिर 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है. MCQs में एज एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन ही आया है, जैसे इतने समय से आ रहा है. ये आप देख सकते हो. फर्स्ट सेक्शन A इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में एक केस सिनेरियो है जिसमें 3 क्वेश्चन से 2-2 मार्क के हैं, 3 into 2 6. और फिर ऐसा और एक केस सिनेरियो है बाद में,
उसमें भी 3 क्वेश्चन से 2 मार्क के, 6 + 6 12। और इनकम टैक्स में 2 क्वेश्चंस और है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4 और एक 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इनकम टैक्स का पार्ट है। और फिर जीएसटी में भी सिमिलर है, एक क्वेश्चन है 1 मार्क का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 2 मार्क का, और फिर एक ही केस स्टडी है और उसमें उन लोगों ने 6 क्वेश्चंस दे दिया 2-2 मार्क के। तो ऐसा दिखता है कि अरे 6 क्वेश्चन से बहुत बड़ा केस स्टडी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड 1.5 पेज का केस स्टडी है, फॉन्ट साइज वगैरह आप देख सकते हो, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं आप लोगों को एग्जैक्ट पेपर जो है वो शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ में। और दूसरी बात, एमसीक्यू के पेपर अब कुछ समय से शेयर होना शुरू हुए स्टूडेंट्स के साथ में। इसके पहले अनऑफिशियली कुछ स्टूडेंट्स अगर समहाउ उसका फोटो ले लेते थे तो फिर मिल जाता था, आई डोंट नो हाउ, बट पहले के जो एमसीक्यू के पेपर्स हैं जो आपको मैंने एमसीक्यू की बुक में प्रोवाइड भी किया है, वो कुछ कुछ अनऑफिशियली मिले हैं, ऑफिशियली नहीं। लेकिन अब ये तो ऑफिशियली मिल गया है, ओके, जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। सो केस सिनेरियो 3 है, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, बट यू विल फाइंड दैट जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टैंड अलोन एक पैराग्राफ पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन स्टैंड अलोन एक पैराग्राफ पे बेस्ड है। तो ऐसा नहीं कि पूरा केस स्टडी अच्छे से समझा तो ही वो क्वेश्चन बनेगा, कभी कभार आपका वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उतना आंसर तो बन जाता है। सो डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी का ये सेक्शन बी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में पढ़ा है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ पार्टी टू एन अपील of revision or any other proceedings before any appellate authority or revisional authority or appellate tribunal or court, then the period of retention of records, यहाँ पर जो आंसर्स मार्क्ड है उस पर ध्यान मत देना, ये कोई स्टूडेंट ने मार्क किया होगा, आई डोंट नो किसने मार्क किया, गलत है वो। तो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स देखना है, ओके। तो क्या रहेगा, 72 months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts, 1 year after final disposal of such appeal or revision or investigation, earlier of A or B, later of A or B। क्या लगता है आपको? बी गलत जवाब, ऑप्शन डी। सी गलत है बोल दिया था आपने, बी ट्राई किया वो भी गलत निकला, फिर ए ट्राई किया, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी थी ना सही होने की, लेकिन कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लॉजिक समझो आप। वैसे तो ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, हम लोग ने पढ़ा है इन द अकाउंट्स, इन द इनवॉइस चैप्टर, लास्ट जो पैराग्राफ था, सेकंड लास्ट पैराग्राफ जस्ट बिफोर सेक्शन, आई थिंक इट इज कवर्ड इन सेक्शन 36, कि कितने समय तक के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। तो नॉर्मली 72 मंथ्स इज द करेक्ट टाइम, 72 मंथ्स फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, इसके एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होगा 31 दिसंबर 2026 प्लस 72 मंथ्स, ये आपको शायद बताया भी था, 31 दिसंबर 2032 हो जाएगा, जब तक कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। बट यदि कोई आपका अपील आपके अगेंस्ट में या कुछ रिवीजन या प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो वो कंप्लीट होने के बाद भी 1 साल तक के आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके कि जिस दिन वो डेट हो गई लेकिन कुछ प्रोसीडिंग चल रही है तो हम लोग रिकॉर्ड्स को जला नहीं सकते हैं, क्या ये डेट हो गई अब गया। तो 1 साल का तो वो अपील्स या प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद में भी वेट करना होता है। अगर देखिए वो अपील या प्रोसीडिंग्स पहले हो गई कंप्लीट तो 72 मंथ्स तक तो मेंटेन करना ही है, वो बाद में हुई तो वो कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक। आप लोग बैकअप में देखना क्लास केस में मैंने आपको ये भी बताया था, मान लो वो अपील सितंबर में खत्म हुई, सितंबर या अक्टूबर 2032 में, तो वहां से 1 साल तक के मेंटेन करना है, विच एवर इज लेटर। विच एवर इज अर्लियर का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मतलब आप अपील जल्दी खत्म हो गई तो जल्दी थोड़ी ना रिस्ट्रॉय कर दोगे, वो उसको रिकॉर्ड्स को मिनिमम 72 मंथ्स तो मेंटेन करना ही है, और अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो वहां से और 1 ईयर तक के मेंटेन करना है, ताकि इनकेस कुछ फर्दर केस रीओपन होता है तो रिकॉर्ड्स रहे अवेलेबल। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो कुछ कुछ चीजें याद करना पड़ता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाली चीज थी। एंड आई वेंट थ्रू होल ऑफ द पेपर, इवन इनकम टैक्स का पार्ट मैंने देखा। अगर आप सिर्फ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट हो या अगर आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट हो तो पेपर अच्छा नहीं गया होगा। लेकिन अगर आपने पेपर सिस्टमेटिक किया, इफ यू आर नॉट डिपेंडेंट, इफ यू हैव स्टडीड थिंग्स कॉन्सेप्चुअली, क्लास इज रेगुलर वाली क्लास, फास्ट ट्रैक वाली बैच नहीं, रेगुलर वाली क्लास अच्छे से किया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे इस टाइप के एग्जाम में। तो आप खुद देखोगे एक एक करके जो छोटी छोटी चीजों पे उन लोग ने क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट, अ लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश entered into a contract, आपको पूछा कि इतने बड़े क्वेश्चन में पूछा ये है,
अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड। पहली बात तो क्या लोकल अथॉरिटी टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल होती है क्या? लोकल अथॉरिटी इज इट लायबल टू डिडक्ट टैक्स? लोकल अथॉरिटी को तो आप एक्सपर्ट हो, इज इट लायबल टू डिडक्ट टैक्स? यस, government departments, local authorities, public sector undertakings and some other persons who have been notified। बराबर है कि नहीं? So yes, but एक exception है उसका, TDS is not applicable if the place of supply and location of supplier is in state A and the location of recipient is in state B। यहां पर ऐसा केस है क्या, देख लीजिए। Local authorities in the state of Madhya Pradesh entered into a contract in June 25 for supply of stationery items with Mr. Shankar, a registered person under GST in Puri, Orissa। तो the party is in Orissa, स्टेशनरी आइटम सप्लाई कर रहे हैं इनको, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? उड़ीसा मानेंगे क्या? स्टेशनरी आइटम, इसका मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है ऐसा मानेंगे आप? अच्छा ये देखो, वो लोग आईजीएसटी का रेट क्यों बताए हैं? इंटर स्टेट है, तो फिर उड़ीसा कैसे मान सकते हैं? स्टेट ऑफ सप्लाई विल बी कंसीडर्ड टू बी मध्य प्रदेश, बिकॉज सप्लायर इज लोकेटेड इन उड़ीसा, supplier is located in Orissa and it is an interstate supply, so therefore it means that the goods are to be delivered, movement is involved। तो इसमें IGST का रेट इसलिए दिया है, इसका मतलब ये TDS के एक्सेप्शन में नहीं है, बराबर है ना? अच्छा, दूसरा TDS में क्या थ्रेशोल्ड लिमिट थी, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू गई तो ही TDS डिडक्ट करना है, 2.5 लाख। अगर एग्जैक्ट 2.5 लाख रहा तो TDS तो भी तो डिडक्ट नहीं करना है, 2,50,001 रुपी रहा तो डिडक्ट करना है। अब ये केस में देखो, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज ₹3 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं वो इंक्लूडिंग जीएसटी देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग विद 2.5 लाख या एक्सक्लूडिंग जीएसटी? एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वेरी गुड। आउट ऑफ टोटल कंसिडरेशन द आइटम्स वर्थ 4,000 आर एग्जेम्प्ट। अब उसमें 4,000 बोल रहा हूँ, 4,000 के आइटम्स तो एग्जेम्प्ट है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे कि 3 लाख रुपीज जो टोटल कंसिडरेशन है उसमें से 4,000 तो वो वाला अमाउंट है जिस पे जीएसटी लग ही नहीं रहा है, जो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट वाले पार्ट पे टीडीएस नहीं काटा जाता है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे। बचा कितना? 2,96,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। अब देयरफॉर हाउ मच अमाउंट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी कैसे करोगे आप? इंटू 100 अपॉन 118 रेट दिया है अपने को, बोलो कितना आया? 2,50,847। This is the contract value for our purpose which is more than 2.5 lakhs, therefore nil option तो गलत हो गया। TDS तो applicable है, अब rate of TDS is 2%, very good, IGST का है, CGST SGST रहता तो 1+1 पर 2% लगेगा into 2%, बोलो कितना होता है? 5016.9। we will go with option D। अगेन वो स्टूडेंट का आंसर बेचारे का गलत हो गया। कंपलसरी क्वेश्चन रहता है ये एमसीक्यू, सो कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को समझ आया क्या? इस तरीके से 4,000 पहले हटा देना है। अगर कोई जोश जोश में आके 3 लाख पे रिवर्स कैलकुलेशन लगा देगा तो भी शायद कोई ऑप्शन से मैच हो जाए, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा 4,000 पे टीडीएस नहीं है। देन अब ये जो केस सिनेरियो दिया है, केस सिनेरियो देख सकते हैं आप, 1.5 पेज का केस सिनेरियो है। पहले मैं क्या करता हूं, मेरी हैबिट ये है कि पहले ये देख लेता हूं कि उस पे क्वेश्चंस क्या पूछे। जनरली 3 ही रहते हैं, इस बार 6 क्वेश्चन है एक ही केस पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा, आईटीसी अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक का आईटीसी कब मिलता है? नहीं, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आया तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। जब कंपोजिशन से रेगुलर में आया या एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल में आया, सेक्शन 18(1) ये हमारे आईटीसी चैप्टर में पढ़े थे, एक तो वो देखना है। शिवानंद स्टील is required to file return in the form of CMP 08। Technically it is not a return, but CMP 08 is a statement for payment। CMP 08 is to be filed by composition supplier quarterly basis पे। तो कौन से पीरियड के लिए फाइल करना है ये देखना होगा हमको। देन मैं बस क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ ताकि उस हिसाब से मैं डेटा को स्टडी करूँ बाद में। इट इज एलिजिबल फॉर टोटल आईटीसी
Eligible for total ITC in the July month for how much? Validity of e-way bill, ये आपको पता है कि जिस दिन जनरेट होता है उसको डे 0 गिनते हैं, उसके बाद हर 200 किलोमीटर के लिए जनरली एक दिन मिलता है, अनलेस इट इज अ केस ऑफ मल्टी मॉडल शिपमेंट इन्वॉल्विंग शिप, है ना, मूवमेंट बाय शिप और ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो वो केस में 20 किलोमीटर्स पर डे, अभी तो 200 पर डे जनरली। फिर जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो अगर जीटीए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, देखेंगे क्या है, अगर जीटीए है तो उसमें रिवर्स चार्ज लग सकता है, ओके देखेंगे। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू शिवानंद स्टील फॉर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक अदर देन कैपिटल गुड्स, तो वी कैन से सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या पूछा था, कैपिटल गुड्स का पूछा था, यहाँ क्या पूछा, फॉर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक अदर देन कैपिटल गुड्स, मीन्स इनपुट्स other than capital goods, inputs held as it is or inputs which are a part of contained in semi finished goods or inputs contained in finished goods। तो मतलब कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 16 और 13 तीनों आईटीसी से रिलेटेड है, बाकी तीन क्वेश्चंस एक रिटर्न से रिलेटेड है, एक ईवे बिल से रिलेटेड है और एक लाइबिलिटी टू पे, मींस डिफरेंट चैप्टर्स का एप्लीकेशन है। अब उसके एंगल से पढ़ते हैं शांति से। शिवानंद स्टील लिमिटेड is a leading manufacturer of stainless steel bars in Bhopal, Madhya Pradesh. It was registered under composition scheme, but on July 15, the turnover of Mrs. Shivanand Steel crossed 1.5 crores. So you know कि except for certain states in India, मामी त्रिना यूएस में आप 8 स्टेट्स थे क्या कंपोजिशन स्कीम में, जहां पर 75 लाख का थ्रेशोल्ड था, बाकी स्टेट्स में 1.5 करोड़ का थ्रेशोल्ड था for the eligibility of composition. The moment the turnover crosses this limit, 15 जुलाई को क्रॉस हो गया, तो now they are registered under regular scheme with effect from 15th जुलाई, रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं। डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑन 14th जुलाई इज गिवन, करेक्ट, प्रीसीडिंग डे का स्टॉक देखते हैं हम लोग। हाँ, अब ये स्टॉक का डिटेल्स दिया, इस पे से आपको आइडेंटिफाई करना है वो आईटीसी अवेलेबल का आंसर बताइए। रॉ मटेरियल परचेसेस मेड एज फॉलोज, स्टॉक में आपके पास ये चीजें पड़ी है, रॉ मटेरियल में ये तीन चीजें, इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स परचेज्ड बाय सो एंड सो इनवॉइस। नाउ टेल मी, ये तो चलो डेटा दिया है, आप पूरा पढ़ लेते हैं इनकेस और भी कुछ है तो। द कंपनी इज चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट 10% ऑन एसएलएम, कंपनी ये मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करती है, वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है। यू विल टेल मी वेदर इट इज रिलेवेंट फॉर आवर कैलकुलेशन और नॉट। नो, on 18 July paid airfare of 20,000 for flight to Itanagar, Arunachal Pradesh, one of the northeastern states, Arunachal Pradesh flight जा रही है in business class for manager who travel for sales promotion, business class है इसीलिए taxable। देखो हम लोग ने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया था थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने अजम्पशन लिखा था अज्यूम टू बी इकोनॉमी क्लास, तभी एग्जाम था, इसलिए प्रैक्टिस बहुत काम में आती है। आप भी जितने क्वेश्चंस करोगे एग्जाम में सेम आने के चांसेस निग्लिजिबल है, लेकिन सिमिलर चीज के पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो सेम नहीं आएगा क्वेश्चन कोई भी, लेकिन सिमिलर आएंगे। अगर आपने वो पढ़ा है तो यहाँ आप अप्लाई कर पाओगे। 20,000 की फ्लाइट है और बिजनेस क्लास है तो इट विल बी टैक्सेबल। ये क्या हमारे लिए आउटवर्ड सप्लाई है कि इनवर्ड सप्लाई है इस कंपनी के लिए? हाँ जी, इनवर्ट सप्लाई, और ये 18th जुलाई है, मींस आफ्टर दे कन्वर्ट टू द रेगुलर स्कीम, तो इसका आईटीसी, इसमें जीएसटी लगेगा कि इन द फर्स्ट प्लेस लग रहा है, आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, बाद में लिया ना, तो रेगुलर में आने के बाद लिया, आप कंपोजिशन से रेगुलर में आ गए हो, रेगुलर में तो अब ले सकते हो ना क्रेडिट, अब रेगुलर में आ चुके हो, आईटीसी मिलना चाहिए ना इसका, तो इसमें कितना जीएसटी लगता है वो भी निकालना पड़ेगा हमको। On 23rd June, शिवानंद स्टील किधर है? भोपाल मध्य प्रदेश। On 23rd June, शिवानंद स्टील got order from Mrs. Sunil and Company located in the city of Kanpur, UP. Okay, got order from Mrs. Sunil and Company located in the city of Kanpur, UP. अब यहाँ पर हमको ऑर्डर मिला आउटवर्ड सप्लाई के लिए, गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द गोडाउन ऑफ शिवानंद स्टील ऑन 26th June। ई-वे बिल से संबंधित डेटा दिख रहे हैं, ई-वे बिल इज जनरेटेड एट 0030 hours on 26th June, मतलब उस दिन वो डेट लगने के 30 मिनट बाद, रात को 12 बजे जब डेट चेंज हुई। Assume that the distance from the godown of Shivanand Steel
टू द लोकेशन ऑफ सुनील एंड कंपनी इज 403 किलोमीटर्स। क्या होगा? 3 दिन, क्योंकि 400 किलोमीटर है, 400 प्लस है, तो ये कर सकते हैं हम अभी के अभी सॉल्व। 26 जून till midnight will be considered as day 0 plus 1 2 3। 27 June will be day 1, 28th day 2, 29th day 3। मतलब 29th जून की मिडनाइट तक के ये बिल वैलिड रहेगा। सही है क्या बेटा? तो इसका आंसर बता दीजिए। द वैलिडिटी विल बी ऑप्शन बी, मिडनाइट ऑफ 29th और 30th जून। ये बच्चे का आंसर फिर गलत हो गया है ना, हो सकता है पढ़ के नहीं गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्या हम लोग ने ये अभी तक जितनी चीजें की बुक में पढ़े कि नहीं पढ़े? अब मुझे बताना कि सर ये चीज तो पढ़े ही नहीं हमने, बताना पूरे जितने सारे क्वेश्चंस होने के बाद। ओके, अब ये हो गया राइट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। वन ऑफ द ओल्ड कस्टमर ऑफ शिवानंद स्टील, मिस्टर देवदास ऑफ भोपाल, देवदास है बेचारा, Bhopal, approached the company and requested to arrange the transportation of another goods purchased by him from a local supplier other than Mrs. Shivanand Steel Limited। इससे नहीं खरीदा, किसी और से देवदास ने गुड्स खरीदा था और अपने को रिक्वेस्ट किया कि हमको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके दो। शिवानंद स्टील लिमिटेड अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेड गुड्स फॉर मिस्टर देवदास दो थ्रू अ ट्रक ओन्ड बाय इट फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब शिवानंद स्टील के पास खुद के पास एक ट्रक था, उससे शिवानंद स्टील ने ट्रांसपोर्ट अरेंज करके दिया अब उसके पुराने कस्टमर के लिए, जिसने परचेज किसी और से किया है। ओके, मुझे तो कैसा धोखा देता, तो मैं तो नहीं करता था, लेकिन अब करके दिया है। शिवानंद स्टील लिमिटेड, ये वही बात हो गई ना, जाने तो नहीं बोलता हूँ। शिवानंद स्टील लिमिटेड डिड नॉट इशू अ कंसाइनमेंट नोट टू मिस्टर देवदास। ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद में उसको आप कैब बुक करके दोगे क्या, है ना, दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। शिवानंद स्टील डिड नॉट इशू अ कंसाइनमेंट नोट टू मिस्टर देवदास। बताइए, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया, हो सकता है उस पर चार्जेस भी लगाया होगा, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कलेक्ट भी किया होगा, बट उन्होंने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया। सो नाउ टेल मी, बाकी की जो चीज़ है वो तो जनरल बात है। बताइए, आपकी ये वाले क्वेश्चन के एंगल से बताइए कि जीएसटी कौन भरेगा इसमें? जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स provided by Shivanand Steel Limited to Mr. Devdas will be paid by specified। ओके, इंडिविजुअल है इसलिए बोल रहे हो कि रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा चार्ज लगेगा? किनको? टैक्स ही नहीं लगता है? श्योर? जीटीए में, ये जीटीए है क्या? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जीटीए ही नहीं है बेटा, ये जीटीए ही नहीं है। दे आर नॉट इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट। हम लोग ने एक सर्कुलर या एक कुछ पढ़ा था सीबीआईसी के एफएक्यूज का एक पार्ट कि इशू ऑफ कंसाइनमेंट नोट इज अ साइन क्वा नॉन, मतलब कि इज अ प्री कंडीशन फॉर क्वालिफाइंग एज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। कंसाइनमेंट नोट इशू करोगे तो ही जीटीए बन सकते हो, कंसाइनमेंट नोट इशू ही नहीं किया तो आप जीटीए ही नहीं हो। मैंने आपको बताया था ऐसे टेम्पो में गुड्स डाल करके भेजा है कहीं, तो उस पर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट है बेटा। ये वाले जो है, ये वाले बच्चे का आंसर सही निकला, सही जवाब। द जीएसटी इज नॉट पेएबल। ओके, पेएबल बाय मिस्टर देवदास, पेएबल बाय मिस्टर देवदास एंड शिवान। ये तो ऐसा कभी नहीं होता है, इक्वली भर देंगे, मिलके भर देंगे, है ना, थोड़ी खुशियां थोड़े गम बांट लेंगे हम। इस पेएबल बाय शिवानंद स्टील लिमिटेड। So don't worry, इसमें this entity Shivanand Steel Limited is acting as a transporter but not as a GTA. Therefore, इस केस में क्या हो जाएगा? GST is not payable। अब अमेंडमेंट आ चुका है कि लोकल डिलीवरी एजेंट वाला थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड किया तो जीटीए से एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन वो अभी भी वैसा केस नहीं है। खैर, ये कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो नहीं हुआ है, तो द आंसर विल रिमेन दैट इट इज एग्जेम्प्ट, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। इज दैट ओके? बोलो कोई तकलीफ? अब बचे हैं ये वाला एक बता दो, क्वेश्चन नंबर 12। रिटर्न सीएमपी 08 कौन से पीरियड का फाइल करना है? क्योंकि ये 14 जुलाई तक के कंपोजिशन में थे, 15 जुलाई से रेगुलर में आ गए। सीएमपी 08 क्वार्टरली है, मंथली, कैसा है? क्वार्टरली है। बताइए, पहला ऑप्शन सीएमपी 08 फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर एंड सेपरेट सीएमपी 08 फॉर जुलाई 1 टू जुलाई 14। कंसोलिडेटेड सीएमपी 08 फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई
14 July. CMP 08 for April to June quarterly. And from July 1 to July 31, GSTR 1 and GSTR 3B. And no CMP 08, only annual return in GSTR 4. बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? ऑप्शन जो हमने पढ़ा है बेसिस रिटर्न्स वगैरह उसके बेसिस पे बताइए कौन सा ऑप्शन पक्का ही गलत लग रहा है एकदम, ऐसा तो नहीं होगा. सी गलत लग रहा है क्योंकि वो 14 दिन तक के कंपोजिशन में था, तो पूरे महीने पूरे क्वार्टर क्या महीने के लिए वो GSTR 1 कैसे फाइल करेगा? GSTR 1 तो जब रेगुलर में आए तभी करेगा, तो ये गलत है. वेरी गुड. फिर और कौन सा गलत लग रहा है? डी, क्योंकि CMP 08 तो फाइल करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं तो पहले क्वार्टर का तो करना पड़ेगा, तो नो CMP 08 भी गलत हो गया. अब ए और बी में से सोचो. ए इज द करेक्ट आंसर. क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कि अगर क्या, हाँ मैं जो पूछा, क्या आपने ऐसा पढ़ा है क्या कि अगर क्वार्टर के बीच में अगर कन्वर्ट होता है तो पिछले क्वार्टर की रिटर्न के साथ में भरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है. अप्रैल 1 से जुलाई 14 का एक साथ नहीं भरना होगा, ये क्वार्टरली रहता है. अप्रैल 1 से 30 जून और उसके बाद में ये 14 दिन का अलग से CMP 08 और उसके बाद 15 जुलाई से 31 जुलाई का GSTR 1 एंड GSTR 3B मंथली में रहता है तो, और क्वार्टरली में रहता है तो जुलाई क्वार्टर पूरा मिलेगा उसको. बराबर है क्या? देखो करते आना चाहिए. मतलब ये 2 मार्क के जो क्वेश्चन थे इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हुआ. क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही? अभी दिख रही है बेटा? स्क्रीन दिख रही है अभी? यस, ओके. आई डोंट नो, तब शेयर तो किया था. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 16 बचे जो ITC से रिलेटेड है. अब उसमें कैलकुलेशंस हैं. What will be the amount of ITC available to Shivanand Steel on capital goods? ITC, total eligible ITC, and ITC available to Shivanand Steel for goods held in stock other than capital goods. और आपको इंफॉर्मेशन दी है, GST rate under the regular scheme for all goods and services including capital goods is 9%, 9% and 18%. Good लिख दिया, capital good. All amounts are exclusive of GST. All inputs and capital goods are intrastate purchases. Inputs and capital goods are intrastate purchases except wherever specific separately mentioned. मतलब यहां पर एक सर्विस भी है, एयर ट्रैवल वाली सर्विस भी है, वो इंट्रास्टेट है, कैसा नहीं बोला है, लेकिन क्या बोला है? इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इंट्रास्टेट है एक्सेप्ट वेयर सेपरेटली मेंशन. सो रेट ध्यान रखना 9918 ही है. अब सेक्शन 18(1) ध्यान करो, जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट होते हो तब क्या करना पड़ता है? कंपोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट होते हो तब आप ITC ले सकते हो, हाँ, कैपिटल गुड्स का ITC ले सकते हो और इनपुट्स का भी ले सकते हो. बट क्या कंडीशन है उसमें? 1 साल के और पुराने वाले इनवॉइसेस का नहीं ले सकते. वेरी गुड. सो वी आर शिफ्टिंग ऑन 15 जुलाई. 14 जुलाई को जो स्टॉक पड़ा है उसमें देख लीजिए आप, उसमें इनवॉइस डेटेड 12 अप्रैल 2023, मोर देन 1 ईयर प्रायर वाला इनवॉइस है, तो इसका ITC नहीं मिलेगा. वो बच्चे ने टिक क्यों लगाया पता नहीं. ओके, उसका ITC तो नहीं मिलेगा. समझ रहे क्या? फिर 18 नवंबर 2023 वाले का इसका मिलेगा 14,50,000 का फ्रॉम TS ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन बीकानेर जयपुर. अब हम तो कहां पर रजिस्टर्ड है? भोपाल मध्य प्रदेश. तो उन्होंने क्या लगाया होगा? IGST. इवन तो लिखा है कि अनलेस सेपरेटली मेंशन एक्सेप्ट वेयर सेपरेटली मेंशन दे आर कंसीडर्ड टू बी इंट्रास्टेट परचेसेस. बट यहां लिखा है कि सप्लायर इज इन बीकानेर, तो उसने क्या लगाया होगा? IGST. और एक चीज पे ध्यान दीजिए, ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST. ये जनरल असम्पशन भी रहता है, तो मींस ये 14,50,000 पे IGST लगा होगा कितना? 18%. बताइए, 2,61,000. ये इसका क्रेडिट मिलना चाहिए हमको. मैंने पहले वाले का क्रेडिट कैलकुलेट ही नहीं किया. GST लगा होगा बट मिलेगा नहीं. रेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिख दिया क्योंकि टोटल रॉ मटेरियल 40 लाख है. रेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड ऑन 25 मार्च. अच्छा, एक और बात, ये रॉ मटेरियल तो कुछ क्वार्टर्स के पहले खरीदा था, तो क्या इसमें 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कम करेंगे क्या? वो सिर्फ कैपिटल गुड्स में करते हैं. वेरी गुड. तो रेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज परचेस्ड वाइड इनवॉइस डेटेड 25 मार्च. तो कैसे कैलकुलेट करोगे? रेस्ट 40 लाख माइनस
10,15,000 माइनस 14,50,000, ये रेस्ट अमाउंट हो गया, बोलो 15.35 है ना। अब ये इसके बारे में लिखा नहीं है कि किससे खरीदा है, तो इसमें इंट्रास्टेट मानेंगे और इसमें लगा देंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों का क्रेडिट मिलेगा, 9% ईच बोलेंगे। 138 150 एंड 138 150 ये रॉ मटेरियल्स का क्रेडिट हो गया, अभी तक के इतना अवेलेबल है। इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, इसका मिलेगा इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स, उसका डेट ऑफ परचेस वगैरह लिखा नहीं है तो मान लेते कि एलिजिबल है तो मिलेगा, बोलो सीधा कौन सा, आईजीएसटी की सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी बताइए। 950 दोनों, और फिर इनपुट्स कंटेंट इन फिनिश गुड्स, ये भी स्टॉक में, ये भी मिलेगा क्या, ये भी मिलेगा, बोलो 99%। 5,01,750 501,750 CGST एंड SGST, वेरी गुड। सो ये जो हमारे पास में इनपुट्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा हमको। तो एक काम करो, CGST का टोटल लगाओ, ये जो 3 वैल्यूज हैं उतना ही SGST निकलेगा। 9,59,850 उतना ही एसजीएसटी और इतना आईजीएसटी ऑन इनपुट्स अदर देन कैपिटल गुड्स। ये हमारे क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक अदर देन कैपिटल गुड्स। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक में रॉ मटेरियल भी आता है और जो पार्ट है, ऑप्शन सी मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। इज दैट ओके? आंसर मैच भी हो रहा है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। अब और क्या है, कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स 1 सितंबर 2023 को खरीदा था, इसका मतलब कि 1 साल के पहले ही खरीदा था, मींस नॉट मोर देन 1 ईयर अर्लियर, जुलाई के मुकाबले। बट इसमें जो भी आईटीसी रहता है उसमें 5% पर क्वार्टर छोड़ के बाकी का मिलता है। एंड क्वार्टर का कैलकुलेशन भी आपको समझाया था कैसे करना है, कैलेंडर ईयर वाइज। तो सितंबर में क्वार्टर खत्म हो गया मानेंगे हम, राइट? तो आपको सितंबर से जुलाई तक के गिनना है कितने क्वार्टर्स हो गए। देखो, एक क्वार्टर सितंबर 23 में खत्म हो गया, फिर दिसंबर 23, फिर मार्च 24, फिर जून 24 और जुलाई के भी 14 दिन हो गए। तो वैसे तो डेट टू डेट 10-11 महीने हुए हैं डेट टू डेट, लेकिन क्वार्टर वाइज 5 क्वार्टर्स का माइनस करोगे, बराबर है कि नहीं? तो या तो आप पहले से 25 लाख पे 5% इंटू 5 माइनस कर लो, या तो पहले 25 लाख पे आईटीसी कैलकुलेट करो फिर उसमें 5% इंटू 5 माइनस करो, एक ही बात है। बताइए इस पे आईटीसी कितना होगा? इसमें आईटीसी होगा 9% 2,25,000, बट उसमें 25% कम करना पड़ेगा बेटा। 25% समझा क्या? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, बोलो 168,750 CGST एंड उतना ही SGST। दिस शुड बी आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ITC 168,750 168,750। आई एम गोइंग विद दिस ऑप्शन। समझ में आया क्या? यस है ना, उसमें भी लिमिट है। हाँ, उसमें दोनों में लिमिट है, मैंने आपको बताया था गुड्स में लिमिट है, एंड गुड्स की डेफिनेशन में दोनों आते हैं, गुड्स कैपिटल गुड्स इनपुट्स दोनों आते हैं उसमें। तो ये भी बराबर विद इन लास्ट ईयर ही खरीदा था, बराबर। यहां तक समझ रहे हैं क्या? अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? क्वेश्चन बचा है 13th वाला, टोटल एलिजिबल आईटीसी। अभी तक का टोटल लगाइए बेटा, 959,850 प्लस 168,750। 959,850 प्लस 168,750 कितना होता है? 11,28,600। और ये IGST। बट एक और सर्विस बची है, कौन सी? एरोप्लेन वाली। 20,000 का एयरफेयर पे किया फॉर अ फ्लाइट टू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश इन बिजनेस क्लास
for a manager who travel for sales promotion of the firm. Now, ये नहीं लिखा है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और ये फ्लाइट पे अगर जीएसटी लगा होगा तो 9+9 या तो 18% के रेट से लगा होगा, और लगा ही है ना, क्योंकि बिजनेस क्लास है, जीएसटी तो लगा है। क्या आप एयर ट्रैवल का क्रेडिट ले सकते हो क्या? ये फॉर सेल्स प्रमोशन ऑफ द फर्म है, नॉट फॉर वेकेशन। मिल सकता है क्रेडिट? यस। अब बताइए, हमको यहां पर एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। या तो ये 20,000 पे आप मानोगे कि आईजीएसटी लगा बोल के, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई वी डोंट नो द लोकेशन ऑफ सप्लायर हियर। ये जो एयरलाइन कंपनी है कहाँ के ऑफिस से टिकट बना रही है, ये नहीं पता हमको, बिकॉज एयरलाइन के केस में द प्लेस वेयर द पैसेंजर बोर्ड्स और एम्बार्क्स फॉर द जर्नी, कंटिन्यूस जर्नी, तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्लाइट टू ईटानगर तो हो सकता है भोपाल से ही जा रहा होगा, क्योंकि भोपाल की पार्टी है। अब अगर सप्लायर भी भोपाल के ऑफिस से बिलिंग कर रहा है तो क्या लगाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, भोपाल का मतलब मध्य प्रदेश का, जिसका क्रेडिट हम ले सकते हैं। और अगर सप्लायर कहीं और से बिलिंग कर रहा है तो वो लगाएगा आईजीएसटी। तो अब ऑप्शंस में देखो, आईजीएसटी में 2,61,000 प्लस 20,000 का 18%, 3,600, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा, विच इज रीजनेबल टू अज्यूम। वो कितना लगा होगा? 1800, 20,000 का 9%, जो ऐड करोगे तो ऑप्शन सी से आप शिफ्ट हो जाते हो ऑप्शन बी की तरफ। समझा क्या आपको? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अगर टोटल लगाओगे तो कैपिटल गुड्स पे 168,750 मिला, बाकी के इनपुट्स पे मिला 959,850, एंड सर्विसेज पे मिला 1800। तीनों का ऐड करोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा इतना इतना, और आईजीएसटी हमने अलग से कैलकुलेट करके रखा है, जो कि एक राजस्थान वाली पार्टी से परचेज किया था। इज दिस ओके? सो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ऑल ऑन बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड। इवन आपने एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस नहीं भी किया तो आपको यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, बस प्रैक्टिस किया तो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा, ओके, इजी जाएगा थोड़ा सा। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस इज लाइक, मैं भी ट्रैक पे जा रहा हूँ तो हमको बोलते कि ट्रैक के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो। वहां पर ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करके पहुंचेंगे फिटनेस, तो फिर हम लोग वहां पर थोड़ा कम कन्वीनियंट कंफर्टेबली परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप लोगों को भी इसलिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें दिया है, करो आराम से और बताइए। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। बोलो, समझा क्या पूरा? ओके, नाउ वी विल टेक अप द डिस्क्रिप्टिव पार्ट।